चीनी केवल एक उत्पाद मात्र नहीं, ये भारत की कृषि, ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धड़कन है। आज के हमारे इस विशेष वृत्तचित्र के सभी माननीय दर्शकों को, मेरे मित्रों को सादर नमस्कार। मैं हूं अमृता चौरसिया। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन और ग्रीन टेक कंसल्टेंट्स ने 2025 के बाद 2026 में एक बार फिर से इंटरनेशनल शुगर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जो कि भारत में चीनी उद्योग के हृदय स्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दूरदर्शी कार्यों को केंद्र पर रखकर इस गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था चीनी उद्योग भविष्य के लिए तैयार। दो दिन में बटी इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी की मुख्य अतिथि रहीं उत्तर प्रदेश सरकार की केन कमिश्नर श्रीमती मिनिस्ती एस। उन्होंने प्रदर्शनी में स्थापित किए गए विभिन्न स्टॉल पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों के ऊपर जानकारी लेते हुए उन्हें देखा गया। एक खास बातचीत में मुख्य अतिथि ने यह स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में चीनी उद्योग कैसे आत्मनिर्भर भारत और भविष्य की समृद्धि की धुरी बन सकता है। Thank you for the opportunity. I'm Ministry S. I'm heading the sugarcane sector as a HOD. The Sugar and Cane Commissioner of Uttar Pradesh. This is a very dynamic sector because it is connecting the livelihood of 4.8 million farmers and their families. So you can understand the significance it has in the economy of Uttar Pradesh, and it's a priority area for Honorable Chief Minister. The payment of sugarcane farmers, which this particular government has done a historic achievement by paying more than 3 lakh crore in a timely and transparent manner, has been a major milestone in our department's achievements. Our challenges today is increasing urbanization, the decreasing sugarcane area, the challenges of mechanization, the lack of proper laborers, and the challenges which we face, apart from the typical seasonal diseases and all that. Now the solution lies in all the stakeholders coming together, as in this particular international conference, where ISMA has brought in multiple intellectuals from various fields. You've got sugar technologists, you have mills, you have IT, you have AI, you have scientists, you have students, and that's a sort of dynamism you require to take this department and this particular sector forward. As a government officer who is a part of this mission, the challenge before me is to ensure that the sugarcane farmer gets his dues, his hard work, ends in good quality crops. We end up ensuring that all the latest technology facilitates that family. That should be the bottom line of it. 2 दिन की यह अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी मई 21 और मई 22, 2026 को हुई। अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के द्वितीय संस्करण में भारत, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और यूएसए से चीनी उद्योग एवं चीनी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ प्रतिभागी बने और उन्होंने उद्योग से जुड़े भिन्न भिन्न मुद्दों एवं नित्य निरंतर हो रही तकनीकी उपलब्धियों पर अपने विचार साझा किए। प्रतिभागियों के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक मुख्य आकर्षण रहा शर्करा भूषण एवं युवा उद्यमी पुरस्कार, जो कि अब चीनी उद्योग से जुड़े एक विशिष्ट मान सम्मान का प्रतीक बन चुका है। यूपीएसएमए के अध्यक्ष ने गोष्ठी से जुड़े प्रमुख मुद्दों के ऊपर अपने विचार साझा किए। Thank you very much. I am Vijay S. Bankar, Managing Director of Dwarike Sugar Industries Limited. We have our plants in UP.
Three plants we have. Two are in Bijnor district and one is in Bareilly district. I'm currently the president of UP Sugar Mills Association. So this is a landmark event that we are holding here, the second edition, and it augurs well and it bodes well for the sugar industry because here we are, all of us gathered here to brainstorm, to discuss the future ahead, what are the challenges that are facing, that we as an industry are facing, how to overcome those challenges, what are the technological evolutions that have happened over the period of time, how cost efficient they are, how feasible they are, what is the payback period involved. It gives our technical teams, of all the companies to assemble here and to have a look at the evolving technologies and adopt them wherever possible. Because one area going forward is, which is relevant at all points in time, is efficiency enhancement and cost reduction. So these are two very important areas which will be examined from close quarters here. There are many other facets of this business which are beyond our control, because most of the, not just in India, world over, the sugar industry is a highly regulated industry. So there are factors which are beyond the control of sugar companies, but yes, adoption of technologies, adoption of best agricultural practices, these are all well within our control, and this is what we should strive to do, and this is how we can be future ready इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में चीनी उद्योग से जुड़ी नए अनूठे नवाचार कार्यों का भी अनावरण किया गया, जैसे कि बलरामपुर चीनी मिल द्वारा तैयार की गई एक पर्यावरण मित्र बस बायोयुग। 2 दिन में बटी इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में 7 सत्र थे। सत्रों की शुरुआत पूर्ण सत्र से हुई। पूर्ण सत्र का विषय था ड्राइविंग शुगर इंडस्ट्री थ्रू इनोवेशन। इस सत्र में चीनी उद्योग में हो रहे विभिन्न नवाचार के ऊपर विभिन्न विचार रखे गए। इस सत्र में साउथ अफ्रीका से आए मोहम्मद कड़वा ने अपने विचार रखे। I am Dr. Mohammed Kadwa, the president of the South African Sugar Technologists Association from South Africa, and I have the pleasure of being here at the second international conference in Lucknow, with the theme being Future Ready Sugar Industry, Pathway for Sustainable Growth. And I was the chair of the plenary session that spoke to driving the sugar industry through innovations, where we had 2 speakers speaking around from the farm to the fork and sustainability of how innovation is going to assist the industries going forward. That very important from the takeaways from the session was that both, whether it's the farmers, whether it's the millers, as well as government, need to work together to be able to have a clear vision going forward. Important is that efficiencies, the basics are done correctly to be able to actually make a difference, and that going forward innovation will continue to be able to be a significant player to be able to support our sugar industries both in India and globally, so that we remain sustainable going into the future. And crucial to this is the people who are involved and the rural communities that our industries support. That innovation is not a silver bullet, but it will play a crucial role, and we need to be able to be flexible, adaptable, and embrace these new technologies as they come with us. Thank you. प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने शुगर इंडस्ट्री मिशन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर अपने विचार साझा किए। I am Narendra Mohan, Managing Director, Green Tech Consultants, Kanpur. And Green Tech Consultant, along with UP Sugar Mill Association, is organizing this 2 days international conference at Lucknow, which is the city of Nawabs, a very historic city. This conference is of immense importance, and if you see the theme of this conference, which is going to talk something about the readiness of the sugar industry for future, how it is going to take up the challenges which are there today and to prepare itself for the future challenges as well. So what should be the pathway to be sustainable, the business models, anything which is related with the sugar industry and which can result in making this industry more sustainable, profitable and viable. In this 2 days conference, we are having a lot of brains discussing on various aspects. We do have very seasoned and practical
people who are going to discuss on various aspects of sugarcane agriculture, because in this part of the country we are having problems with the sugarcane productivity, both in terms of the quality and the quantity. So that is very high on the agenda for this conference, where we are going to discuss about how we are looking at the sugarcane varieties in times to come, in the coming 2-3 years, because the subtropical region has been rather adversely impacted because of the sugarcane variety from the last 2-3 years. So what else we can do? Mechanization of the sugarcane farming, adoption of the AI and ML, talking about the soil health. So anything and everything which is related with the sugarcane agriculture, we are going to discuss in this conference. Second, which is very important, because we used to talk about sugar surpluses. Now we are talking about the ethanol surpluses. The country is having ethanol capacities to the extent of around 2,000 crore liters. And if you look into the consumption patterns, the ethanol which you require for the 20% of the blending is 1,056 crore liters. So you do have double the capacity what you need for the 20% of the blending. So what to do with the surplus of the ethanol? So this is $1 million question today, and we are talking about what government can do for us, to consume this excess or the surplus of the ethanol. Can we increase the blending level to 22%, 25%, 27% or 30%, the calibrated increase in the ethanol blending? Or can we look beyond ethanol, consuming ethanol for making other, biochemicals, or using ethanol for making sustainable aviation fuels, and even the isobutanol or dimethyl ether, whatever it is. So these all aspects we are going to discuss, because if we go for increase in the blending levels, even to E85 which we are talking about, there are many challenges with respect to distribution, with respect to compatibility of the vehicles, with respect to the pricing pattern of the E85 vehicles and the E85 fuel which we are going to use. So this is another very important session we are going to have. And then, as I personally always say, we are talking a lot on bioenergy, biofuels, and if you see, every day you are having some conference on bioenergy or biofuel. But still 80% of the revenues are coming from sugar to the sugar industry. So sugar is important, it was important and will remain important for the sugar industry. आर के गंगवार, प्रबंध निदेशक, मवाना शुगर लिमिटेड ने इस सत्र में अपने विचार रखकर इस पूर्ण सत्र का समापन किया। पहले सत्र का विषय बायो इकोनॉमी ऑफ शुगर सेक्टर, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस था। यूपीएसएमए के सेक्रेटरी जनरल दीपक गुप्ता द्वारा संचालित पहला सत्र बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। बलरामपुर चीनी मिल के होल टाइम डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता जी ने इस सत्र एवं गोष्ठी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के ऊपर अपने विचार रखे। गुड आफ्टरनून, आई एम प्रवीण गुप्ता। आई एम द होल टाइम डायरेक्टर and head of corporate technical team of Balrampur Chini Mills Limited. Balrampur Chini Mill has 10 sugar mills located in Uttar Pradesh with a crushing capacity of 80,000 tons of sugar cane per day. Apart from that, we have 5 distilleries where we produce 1050 KLPD of ethanol on daily basis. Apart from that, we also export power to the grid. We make potash granules, we capture CO2, we make DDGS, which is a byproduct of a grain-based distillery. And now we are putting up a polylactic acid plant with the capex of about 3,000 crores, which will produce 80,000 tons of polylactic acid per annum. And it is expected that the plant will go on stream by end of this year. Now, polylactic acid is basically a substitute of plastic, and the government has banned 19 items which fall under single-use plastic category, and this polylactic acid will go a long way for its substitution. So we can make cutlery, we can make plastic bottles, we can make this packaging for so many things, agriculture, textiles, automobiles. There are n number of things. Wherever there is plastic, polylactic acid will work. Okay, so this is basically an environment friendly, sustainable project, and
it will reduce the carbon emissions, and for this project government of UP is all out helping us and they have given us full support and we expect it to be a great success. Thank you. इस सत्र में रखे गए विचार प्रतिभागियों के बीच में खासी चर्चा का विषय रहे, जिसमें अरविंद चुडस्मा, CL शर्मा, डॉक्टर AP कीर्तिपाला, प्रवीण गुप्ता, अनूप केशरवानी और दीपक गुप्तारा ने न सिर्फ अपने विचार रखे बल्कि सत्र के विषय के ऊपर प्रतिभागियों को भी अपने विचार रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सत्र 2 का विषय था रीडिफाइनिंग जूस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। इस सत्र का संचालन किया शरद यादव जी ने, जो कि एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट DCM श्रीराम लिमिटेड के रूप में कार्यरत हैं। इस सत्र में चीनी उद्योग के एक प्रमुख पहलू जूस एक्सट्रैक्शन से हो रही तकनीकी विकास और तकनीकों को बेहतर बनाने के ऊपर विचार साझा किया गया। इस सत्र में शरद यादव के साथ चर्चा में अपने विचार रखने वाले व्यक्तिगत थे श्रीमती प्राची अभिजीत अपशंकर, GM डिजाइन, JPMA पुणे, श्री पंकज श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक एनमिल टेक मशीन्स, श्री वुल्फगैंग क्लास्टर हाफन एवं श्री MK कुलश्रेष्ठ। सत्र 3 रहा प्रौद्योगिकी प्रदाता सत्र। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सत्र था। इस सत्र का संचालन श्री विकास ठाकुर ने किया। सत्र में भाग लिया जर्मनी से आए श्री मार्क ओलिवर वुडहार्ट ने, जो कि प्रबंध निदेशक हैं जर्मनी की 2 बड़ी कंपनियों के सुक्रोस्फियर और फाइफर एंड लॉन्गिट IP GmbH जर्मनी। So India is a very interesting market for us, and we had an invitation from Professor Narendra Mohan and UPSMA to join this conference, and for us it's totally new. We have a product developed with the name Sucrosphere to supporting the sugar factories worldwide to automate the process in a different way than it's done today. Okay, so how's your experience at the conference? It was really a great welcome to us and very big interest, and we had so much touch points with different factories, a lot of interesting discussion, interest in our products, so it was really beneficial to come here, and we are enjoying and looking what happens today on the second day at the conference. इस सत्र के विषय के ऊपर अपने विचार साझा किए श्री संजय देसाई, प्रबंध निदेशक ग्रीन एक्सेल EPC इंडिया लिमिटेड ने। उनके साथ अपने विचार रखने वाले विशिष्ट व्यक्ति थे श्री जॉन सी साजी मैथ्यू, CBG एक्सपर्ट इंजीनियर अवंतगार्ड चेन्नई, एवं सतीश V, सीनियर टेक्निकल मैनेजर UI ट्रेंड वीरो प्राइवेट लिमिटेड कानपुर। सत्र 4 का विषय था टर्निंग वेस्ट इन वर्थ, पार्टनरिंग वाटर विजडम एंड ग्रीन एनर्जी इन शुगर प्रोडक्शन। We are providing sustainable treatment solution for industrial waste water management. आशीष अवस्थी द्वारा संचालित सत्र 4 का विषय इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण था क्योंकि विश्व भर में जल आज एक अत्यंत ही चिंता का विषय है। ये सत्र था जल के समझदार इस्तेमाल से हरित ऊर्जा का चीनी उत्पादन में सदुपयोग। इस सत्र में अपने विचार रखे गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर संजय पाटिल, हेड एंड टेक्निकल एडवाइजर VSI पुणे, डॉक्टर चंद्रशेखर, लीड साइंटिस्ट R&D कैटलिस्ट बायोटेक्नोलॉजीज, इजिप्ट के EPRI के निदेशक डॉक्टर नूर शेख शफीक अल घिनेडी ने इस विषय पर भारत बोल न्यूज से खास बातचीत की। Good afternoon. I'm Noor El-Gendi, Professor of Environmental Sciences from Egyptian Petroleum Research Institute in Egypt. I'm the head manager of the Central Lab, which is serving all the petroleum and energy and industrial sector also in APRI in Egypt. I would like to thank all the organizers of the second International Conference on Sugar Industry for inviting me as an invited speaker and invited panelist in this valuable event.
This is a very, very important event in my opinion because it's really related to the bioeconomy and the green economy, which is very important for achieving the sustainable development goals and also with its three pillars: environment, society and economy, because we cannot move forward for a sustainable future without using all the available wastes which can be expected as a resource, not a waste, to produce value-added products and valued products. So we are dealing here in this conference with my talk about how we can use sugarcane industrial waste like that of sugar bagasse and sugarcane bagasse and also molasses to be a resource for different value-added products, for wastewater treatment, for producing different kinds of biofuels like that, and bioproducts like that, bioethanol, biogas, biochar and liquid fertilizers, and also we can produce nanomaterials with green synthesis to be applied for as a catalyst and biocide for against harmful and pathogenic microorganisms and the organisms causing corrosion. So I am thanking again all the organizers for inviting me, and I hope to all of the attendees and the speakers a good event. Thank you. दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के दूसरे दिन की शुरुआत सत्र 5 से हुई और सत्र का विषय था एफिशिएंट जूस प्रोसेसिंग एंड एनर्जी कंजर्वेशन। डॉक्टर आर.वी. दानी, जो कि VSI पुणे में चीनी तकनीक के पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने सत्र का संचालन किया। इस सत्र में सम्मिलित विशिष्ट व्यक्तिगण थे अमेरिका की कंपनी कार्बो सॉल्यूशंस इंटरनेशनल LLC के इमानुएल एम सरीर, श्री हर्षवर्धन VP प्रोजेक्ट DCM श्रीराम लिमिटेड, श्री वेंकट राव VRL ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, श्री नितेश सक्सेना GM प्रोडक्शन डालमिया भारत शुगर, श्री ओम शंकर शुक्ला AVP प्रक्रिया DCM श्रीराम लिमिटेड ने अपने विचार रखकर सत्र का समापन किया। सत्र 6 का विषय था शुगर केन मिटिगेटिंग क्वांटिटी एंड क्वालिटी चैलेंजेस। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के प्रतिभागियों को संबोधित किया श्री VK शुक्ला, अपर गणा आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार, डॉक्टर दिनेश सिंह, पूर्व निदेशक IISR लखनऊ, डॉक्टर प्रियंका सिंह, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर UPCSR शाहजहांपुर, डॉक्टर RB डोले और थाईलैंड से आए डॉक्टर विराट वड़िच श्रीरत्नानी। मैं VK शुक्ला यहाँ प्रदेश सरकार में अपर गणना आयुक्त के पद पर कार्यरत हूँ और अभी 2 दिवसीय ये इंटरनेशनल संगोष्ठी हुई और इसका जो पूरे सब्जेक्ट पर जिस पर शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड शुगर केन कल्टीवेशन से रिलेटेड विभिन्न विषयों पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई। इम्पैक्ट इसका उम्मीद है कि जो यहाँ डिस्कस हुआ उसको ले जाके लोग फील्ड में अडाप्ट करेंगे और इससे किसानों की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट करने में और शुगर इंडस्ट्री के सस्टेनेबिलिटी में काफ़ी योगदान होगा। जहाँ तक मैं विभाग की तरफ से मैं शुगर केन प्रोडक्टिविटी में जो कंस्ट्रेंट्स हैं इस समय उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा कि अभी मेन इश्यूज शुगर केन में एक वेराइटल डेवलपमेंट का है और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट का और मैकेनाइजेशन का। ये 3 इशू कोर इशू हैं इस समय। जहाँ तक वेराइटल डेवलपमेंट की बात है जो कि 238 वैरायटी रीजनरेट हुई है, तो उसके जगह पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम कोई बेंचमार्क वैरायटी ला पाएँ जिससे इंडस्ट्री एंड किसान दोनों की प्रोडक्टिविटी का इशू सॉल्व हो और शुगर रिकवरी भी अच्छी आए उसमें। दूसरा जो अभी फार्मर्स के लेवल पे सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो लेबर की आ रही है। एग्रीकल्चर लेबर की कमी की वजह से प्रोडक्शन एक कांस्टेंट हो गया है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम लोग मिनी हार्वेस्टर या हार्वेस्टर को कैसे हम अडाप्ट कर सकें और उसमें क्या चेंजेस करके हम उसको किसानों के लिए उपयोगी बना पाएँ, इस पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि हमारे मैन्युफैक्चरर जो हैं वो जो
एक्सपेक्टेशन है और जो उसमें समस्याएं आ रही हैं उसको दूर करते हुए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमें दे पाएंगे जिससे हमारी हार्वेस्टिंग की समस्या किसानों की सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा इशू आता है पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट का। उसके लिए हम लोग सोसाइटियों के स्तर पर जो क्वालिटी पेस्टिसाइड प्रोवाइड करा रहे हैं, चीनी मिलों को भी हम लोग फैसिलिटेट किया है कि ताकि वो लोग भी अपनी तरफ से इनपुट्स किसानों को बांटें, जिससे किसानों की क्रॉप अच्छी हो और उनको आमदनी भी उनकी अच्छी रहे, कम लागत में अधिक प्रोडक्शन कर पाएँ। तीसरा सॉइल टेस्टिंग और सॉइल फर्टिलिटी मैप पर फोकस कर रहे हैं हम लोग कि ताकि प्रत्येक शुगर मिल एरिया में सॉइल की हेल्थ कैसी है और उसके अनुसार उसमें क्या ज़रूरत है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो ये बेसिक इशू है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम लोग जल्दी सफल होंगे इसमें। थैंक यू। डॉक्टर सुशील सोलोमन ने सत्र का समापन किया। सत्र 6 के बारे में एक संपूर्ण ब्यौरा देकर चीनी उद्योग की इस दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का अंतिम सत्र था। सत्र 7 का विषय था मैकेनाइज्ड फार्मिंग एंड ऑटोमेशन। डॉक्टर D.B. फोंडे सलाहकार उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड ने इस सत्र का संचालन किया। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के प्रतिभागियों को संबोधित किया सवेश सिंह CTO PLA यानी पॉलीलैक्टिक एसिड बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, दिलराज दहिया प्रबंध निदेशक, हेंसमैन वीरपाल सिंह सहायक प्रबंध अधिकारी, शक्तिमान एग्रो, लॉरिड्स एंड नटसन के सार्थक श्रीवास्तव और बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड के मुख्य प्रबंधन अधिकारी संदीप अग्रवाल। मैं संदीप अग्रवाल बलरामपुर चीनी मिल की यूनिट मिर्जापुर में यूनिट हेड हूँ और मैं बलरामपुर की तरफ से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी आपने पूछा कि शुगर इंडस्ट्री को आगे के लिए किस तरह से तैयार होना है, तो ये देखिए कि आज जो हम लोग सेमिनार कर रहे हैं इसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि हमारी शुगर इंडस्ट्री आगे के चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या क्या कदम उठाए कि जो आगे हमारा रियलाइजेशन इम्प्रूव हो, हमारी बॉटम लाइन इम्प्रूव हो। उसको करने के लिए तो मेन जो मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन में हमें जाना चाहिए। दूसरा, शुगर को सिर्फ शुगर की तरह नहीं और उसके क्या क्या और प्रोडक्ट्स और मेजर प्रोडक्ट्स इसमें से हम ऑफ कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे शुगर से पॉलीलैक्टिक एसिड का एक चल रहा है, बलरामपुर चीनी मिल ने प्रोजेक्ट शुरू किया है पॉलीलैक्टिक एसिड बनाने के लिए। और इसके अलावा जो इथेनॉल है, इथेनॉल के सब प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स और हम क्या क्या बना सकते हैं, तो उस डाइवर्सिफिकेशन पे भी हमको जाना चाहिए, वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैकेनाइजेशन की जो बात है, अगर हम मैकेनाइजेशन की बात करें तो आज की तारीख में आप देखें जो हमारा शुगर केन हार्वेस्टिंग है, शुगर केन प्लांटिंग है, बिकॉज ऑफ द लेबर जो है बहुत इकोनॉमिकल नहीं रहा, उसकी कॉस्ट डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लेबर डिपेंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे हमें शुगर केन प्लांटिंग कैसे हम मैकेनाइज कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग को कैसे मैकेनाइज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। इरिगेशन को कैसे हम AI बेस्ड अपना इरिगेशन कर सकते हैं कि हमारा कम से कम पानी का वहाँ पे खर्चा हो और कम से कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा केन की प्रोडक्टिविटी ले पाएँ। तो मेजरली हमारा जो फोकस है कि हम आगे शुगर इंडस्ट्री में कैसे मैकेनाइजेशन करें, कैसे ऑटोमेशन करें और कैसे डाइवर्सिफिकेशन करें, हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको स्टडी करने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए और ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी गई है कि जिससे डिफरेंट जो एरिया के एक्सपर्ट लोग हैं उनका इनपुट मिल सके हमको और हम उस दिशा में आगे बढ़ के काम कर सकें, जिससे शुगर इंडस्ट्री का फ्यूचर में प्लान तैयार हो सके और आगे बढ़ने में जो चैलेंजेस हैं उसको फेस करके आगे से ठीक से हम सस्टेनेबल ग्रोथ को हासिल कर सकें। चीनी उद्योग की इस दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में बिहार के केन कमिश्नर श्री अनिल कुमार झा ने खास बातचीत में अपने विचार साझा किए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार झा हूँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ। मैं बिहार का एक आयुक्त हूँ। मुझे इस कार्यक्रम के लिए जब आयोजकों ने निमंत्रण दिया तो मुझे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और इसलिए मैंने सरकार के परमिशन से यहाँ इस कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ। जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है
कि जो चीज़ें एक तो दुनिया भर के जो एक्सपर्टीज़ है इस क्षेत्र में, इसको एक साथ लाने का प्रयास लखनऊ में उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन के द्वारा हो रहा है, जो बहुत ही सराहनीय पहल है। और इस क्षेत्र में जहां एक तरफ आप लखनऊ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च है जो कि खेती के विभिन्न आयामों पर चर्चा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री के जो अनुभव हैं उसको साझा किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो शुगर केन क्रॉप का जो वेलबींग है, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से भी और फार्मर्स पर्सपेक्टिव से भी, इस और होल जो क्रॉप इकोलॉजी है उस पर्सपेक्टिव से भी ये डेलिब्रेशंस बहुत रेलिवेंट हैं। और इसके लिए मैं आयोजकों को वास्तव में मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसा सोचा, और जो 2 दिन से ये बातचीत चल रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, उसके बहुत दूरगामी जो असर होंगे, जो अनुशंसाएं होंगी, मुझे लगता है क्रॉस द इंडस्ट्री सबको फ़ायदा होने वाला है। जो क्रॉस द फार्मिंग कम्युनिटी है उनको फ़ायदा होने वाला है, और सरकार की बहुत सारी जो नीतियाँ हैं उसके संबंध में ये विचार बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चीनी उद्योग की इस दूसरी अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का समापन किया श्री दीपक गुप्ता राजी ने और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। मेरा नाम दीपक है, मैं महासचिव हूँ यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन लखनऊ में। हमारे सदस्य चीनी मिल प्राइवेट सेक्टर के मिलर्स हैं। हम लोग प्रतिवर्ष ग्रीन टेक कंसल्टेंट्स कानपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन करते हैं। ये दूसरा संस्करण है जो 21 और 22 मई को लखनऊ में संपन्न होगा। इसमें लगभग 10 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं तथा भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे गन्ना विशेषज्ञ, शर्करा तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसके साथ ही हमारे जो शोध संस्थान हैं उनके वरिष्ठ वैज्ञानिक भी इसमें शामिल होकर के प्रतिभाग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर बातचीत कर रहे हैं। साथ ही हमें राज्य सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। हमारी आयुक्त महोदया, वरिष्ठ अधिकारी जिसमें कि हमारे एडिशनल केन कमिश्नर साहबान शामिल हैं, उन्होंने हमें पूरा समय दिया और विभिन्न एस्पेक्ट्स के बारे में उन्होंने पॉलिसी मेकर्स का पर्सपेक्टिव बताया। साथ ही जो नए काम किए जा रहे हैं वो भी, उसके बारे में भी जानकारी दी। कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहा जिस पे लोगों ने इंटरेक्शन किया और सभी प्रकार तकनीकी और वाणिज्यिक विषयों पर चर्चा हुई, गहन चर्चा हुई। हमें आशा है कि इससे हमारे प्रतिभागियों को काफ़ी लाभ होगा और आगामी वर्षों में भी हम इस प्रकार के आयोजन करते रहेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत का चीनी उद्योग केवल परंपरा का वाहक नहीं बल्कि तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता का अग्रदूत बन चुका है। भारत अब उस युग में प्रवेश कर चुका है जहां हर खेत, हर मिल, हर नीति पर्यावरण, ऊर्जा और नवाचार से जुड़ी है। चीनी उद्योग की यात्रा केवल उत्पादन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के साथ विश्व निर्माण का भी संकल्प है। अब मैं अमृता चौरसिया आप सभी से विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगले साल जब मैं आपसे मिलूंगी तो चीनी उद्योग देश की न सिर्फ अर्थव्यवस्था बल्कि देश की छवि में भी और निखार और प्रकाश ला चुका होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।